آپ سب بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اپنے دونوں ہاتھ لہرائیں خدا کے لیے، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، روح القدس کے لیے، اور ہاللویا بھی ساتھ کہیں، ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اور راستو پوپو ریندا رما کوریالا، اور زوردار تالیاں خدا باپ کے جلال کے لیے۔ اور میرے ساتھ مل کر خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں، مقدس یوحنا رسول کی انجیل ہے اور اس کا 16واں باب اور 16ویں باب کی 7ویں آیت ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، آج میرا عنوان ہوگا سودے مسیح میں ہماری برکات۔ سودے مسیح میں ہماری برکات، یا پھر سودے مسیح ایماندار کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے کہ ہم نے آج کے کلام اقدس میں بھی پڑھا کہ مسیح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا جانا جو ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی عزیز جو ہمیں بہت ہی پیارا ہو اور ہم اس کی جدائی کو برداشت نہ کر سکیں، اداس ہو جائیں، بعض اوقات عزیز کہتے ہیں آپ نہ جائیں، ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے۔ بیوی ابراڈ جانے والے شوہر کو کہتی ہے آپ نہ جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکوں گی، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ اس کے جانے سے جو فائدے ہوں گے وہ یہاں پر رہنے سے نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح سے ہم خدا کی دلہن، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور یسوع مسیح کے شاگرد شاید مسیح کے آسمان پر جانے سے کچھ اداس بھی ہو جائیں، کچھ پریشان بھی ہو جائیں۔ شاگرد جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو 13ویں باب سے شروع کر کے 17ویں باب تک، 17ویں باب تک یسوع مسیح کو 12 بار ان سے ذکر کرتے ہیں کہ میں آسمان پر چلا جاؤں گا، میں باپ کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور جب انہوں نے فسح کا کھانا کھایا تو فسح سے پہلے اور فسح سے بعد خداوند یسوع مسیح ان کو باور کرواتے رہے کہ میں آسمان پر چلا جاؤں گا، لیکن ان کو یوں بھی فرما دیا، ان کو یوں بھی کہہ دیا کہ تمہیں بھی یتیم نہیں چھوڑوں گا، اور باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہارے لیے دوسرا مددگار جو ہے وہ بھیج دے، تاکہ جو میری خالی جگہ ہوئی ہے اس کو پُر کرے، تاکہ
وہ جگہ لے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے انتظام کیا تاکہ جو الہی قدرت جو تھی جگہ چھوڑ رہی تھی، اس جگہ پہ دوسری الہی قدرت آ کر ان کے ساتھ رہے اور ان کے لیے کام کرے، بلکہ زیادہ کرے، اور روح شاگرد جو ہیں وہ روح القدس سے بھر جائیں۔ ہاللیلویہ، ہم روح القدس سے بھر جائیں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آج 43واں دن ہے، یعنی پچھلی جمعرات کو 40 دن مکمل ہو گئے، اور 40 دنوں کے بعد یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اور یسوع مسیح اس وقت آسمان پر اٹھائے گئے جب شاگرد جو تھے، جب ایماندار جو تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح آسمان پر گئے، اور اعمال کی کتاب اور اس کے پہلے ہی باب میں ہم یہ بات اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ تو میرے عزیزو، مسیحوں نے دیکھا ہے کہ ان کا رہنما کس طرف گیا ہے۔ وہ زمین کے نیچے نہیں گیا، وہ مشرق کو نہیں گیا، وہ مغرب کو نہیں گیا، وہ کسی اور جگہ نہیں گیا، بلکہ کہاں گیا ہے؟ آسمان کی طرف گیا ہے، اور ہم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسیحی ہمیشہ کہاں دعا کرتے ہیں؟ نہ تو وہ کسی مقبرے پر دعا کرتے ہیں، نہ تو وہ کسی اور چیز کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، بلکہ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے آسمان سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رہنما، ان کا خداوند، ان کا جو منجی ہے اور ان کا جو مالک ہے وہ کس طرف گیا ہے؟ وہ آسمان کی طرف گیا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بت کو پوج نہیں سکتے۔ مسیحی کبھی بھی کسی بت کو پوج نہیں سکتے، کیونکہ ان کا مسیحا اور ان کا خدا نمونہ دے کر گیا ہے کہ میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے ہم کہاں سے دعا کرتے ہیں؟ آسمان پر سے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی جب وہ لازر کی قبر پر تھے تو آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی۔ ہم بھی آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمارا منجی بھی وہیں سے آئے گا، آسمان سے ہی آئے گا، جیسے فرشتوں نے کہا کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف اس طرح تاکتے ہو؟ کیونکہ یہی یسوع جو آج آپ کے سامنے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے، آسمان پر چلا گیا، پھر آئے گا۔ تو ہم وہیں سے آسمان سے اس کے آنے کے منتظر ہیں۔ جب وہ اپنی دوسری آمد پر آئے گا تو وہیں سے ہماری جو آنکھیں ہیں، خداوند کے لوگوں کی آنکھیں ہیں، اسے آتا ہوا اسی طرح سے دیکھیں گی۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ خوشی کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ ایمان کی باتیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور پھر ہم یتیم نہیں چھوڑے گئے، ہمیں دوسرا مددگار دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آج خدا عید قیامت المسیح کے بعد 43واں دن ہے، اور آج ہی ہم عید سعود کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور عید سعود آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ گو کہ جمعرات کو تھا، لیکن کیونکہ آج سنڈے ہے، اس لیے میری طرف سے آپ سب کو عید سعود یعنی
खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद मुबारक हो। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो गालिब आकर, हमारा खुदावंद फतह पाकर अपने काम को मुकम्मल करके आसमान की तरफ गया है। वो शिकस्त खुदा होकर वो आसमान पर नहीं गया, बल्कि वो गालिब आकर इब्लीस को शिकस्त देकर और अपने काम को मुकम्मल करके आसमान पर अब चला गया। वो पैदा हुआ, वो जवान हुआ, 30 साल की उम्र में उसने खिदमत शुरू की और फिर उसने मौजज़ात किए और उसने दुख उठाया, उसने कफारा अदा किया, उसने कफारा अदा किया और वो मर गया, फिर वो जी उठा। ये तसलसल है खुदावंद के काम की और हमारी निजात की सारी बातें जो हैं वो तसलसल के साथ हैं। हमें इन बातों को याद रखना चाहिए। मसीहों का ये ईमान है, मसीह पैदा हुआ और फिर जो है वो उसने दुख उठाया और फिर वो मर गया और फिर वो जिंदा हुआ और फिर आसमान पर चढ़ गया। अपने ईमान के अकीदे में, रसूलों के अकीदे में ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। हमें इस तारीख का, हमें इस हिस्ट्री का इल्म होना चाहिए, हमें इन बातों का पता होना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह अपना काम मुकम्मल करके आसमान पर चले गए। अब मैं आपके सामने इस मुख्तसरन इस बात को भी बयान करना चाहूँगा कि ये 50 दिन क्यों लगे, इन 50 दिनों का वक्फा क्यों है। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर और जी उठने और आसमान पर जाने तक का जो 50 दिन का वक्फा है, ये कैसे है। पहले नंबर पर तो जो यहूदी थे वो भी ईद पेंतिकोस्त मनाते थे और वो 50 दिन के बाद फसल काटने की ईद मनाते थे, जैसे कि पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है। तो इस अरसे को मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि खुदा की तरफ से ये टाइम पहले ही से मुकर्रर था। तो खुदा यीशु मसीह ने इस टाइम को पूरा किया, यानी कि 50 दिन जो थे वो रुल्कुस के आने तक मुकम्मल हुए। लेकिन उससे पहले 40 दिन जब हुए तो यीशु मसीह आसमान पर चले गए। उन 40 दिनों में वो यहाँ पर क्या करते रहे? उन 40 दिनों में वो शागिर्दों के ईमान को मजबूत करते रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मौत की वजह से शागिर्द जो थे वो बेदिल हो चुके थे, वो बेईमान हो चुके थे और वो कमजोर हो गए थे। और हम देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और औरतें खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म पर खुशबुएं मलने के लिए गई और जब उन्होंने पत्थर को हटा हुआ पाया और लाश वहां ना पाई और फरिश्तों ने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो तो जी उठा है, जाकर उसके भाइयों को बताओ। उन्होंने जाकर भाइयों को बताया, उन्होंने जाकर शागिर्दों को बताया, तो शागिर्दों को फिर भी यकीन ना आया। वो आए, भागे भागे आए। पहले पतरस आया, खाली कब्र को देखा, यूहन्ना ने देखा और फिर भी उनको यकीन ना आया। इतना ज़्यादा उनका ईमान कमज़ोर हो चुका था। और मेरे अजीज़ों, देखें, ये वो 12 लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद चर्च को संभालना था और जी उठे यीशु की गवाही देनी थी। अगर यही ईमान में कमज़ोर हो चुके थे तो फिर गवाही कौन देता? इसलिए ये ज़रूरी था कि यीशु इनको नजर आकर, इनके सामने आकर इनके ईमान को मजबूत करता। लिहाजा
خدا کے کلام اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن ان کو نظر آتا رہا. کبھی وہ ان کو جھیل پر نظر آتا، کبھی وہ ان کو گھر میں بالا خانے میں نظر آتا، اور پھر اس نے ان سے کہا، توما سے کہا کہ آ میرے زخموں میں ہاتھ ڈال. اور پھر اس نے ان سے کہا مجھے چھو کر دیکھو. اور کلام اقدس میں آیا ہے کہ وہ تقریباً 2 چیزوں کا ذکر پایا جاتا ہے. کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 بار یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ 16 بار وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا. وہ کیوں ظاہر ہوا؟ وہ اس لیے بار بار ظاہر ہوتا رہا، ان کو یہ بتاتا رہا کہ میں زندہ ہوں، میں جی اٹھا ہوں. اور شاگرد اس کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے تھے. کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا پہلا واقعہ تھا، کبھی کوئی مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تھا. وہ دیکھتے تھے لیکن پھر وہ ڈگمگا جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی. یہ بہت ہی ایسی بات تھی جو کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ مان نہیں رہے تھے. لیکن خداوند نے الہی قدرت کے وسیلے سے ان کو باور کرایا اور ان کے ایمان کو مضبوط کیا. اور جب انہوں نے مان لیا، یقین جان لیا اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، تو تب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے. لیکن جانے سے پہلے ان کے سپرد ان کا مشن کیا اور ان کا کام کیا. جو حوالہ، جو تلاوت پاسٹر صاحب کے بیٹے نے آپ کے لیے کی ہے، اس میں ذکر آیا ہے کہ اس نے ان کو ان کا مشن سونپا اور ان سے کہا کہ ساری دنیا میں جا کر ان کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یہ مشن تھا شاگردوں کا جو انہوں نے کرنا تھا. اور میرے عزیزو، جب وہ ایمان میں کمزور ہو گئے تو یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب جب کہ وہ ایمان میں مضبوط ہو گئے تو اب خداوند یسوع مسیح مشن ان کے سپرد کر کے، مشن ہمارے سپرد کر کے آسمان پر چلے گئے اور ان سے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو. اور آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف شاگردوں ہی کے سپرد کیا گیا؟ بتائیں، جواب دیں. یہ کام صرف شاگردوں ہی کے سپرد نہیں کیا گیا تھا. یہ خدمت جو ہے یہ ہمارے بھی سپرد ہے. اس لیے یسوع مسیح آسمان پر جانے کے بعد وہ چلے گئے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ انجیل کی ضرور منادی کریں. ہم گھروں ہی میں نہ بیٹھے رہیں، ہم جابز ہی نہ کرتے رہیں، ہم دولت ہی نہ اکٹھی کرتے رہیں. مسیحوں کا جو اپنے آپ کو مسیحی سمجھتا ہے اس کا کام خوشخبری کو پھیلانا ہے. بہنیں بھی اور بھائی بھی خوشخبری کو پھیلائیں. اور یہ یسوع مشن آپ کے سپرد کیا گیا ہے. اب میں بہت ہی مختصراً آج جو میرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے ہمیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے شاگردوں سے کہا تھا، جیسے میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اس کا جانا ہمارے لیے فائدے مند ہے. جیسے ہمارے خاندانوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ پہلے ایک جاتا ہے. کتنے جاتے ہیں؟ پہلے امریکہ ایک جاتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری فیملی کو بلا لیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسی تو سارا خاندان ہی امریکہ چلے گئے ہیں. لیکن آپ کے پاس امریکہ جانے سے زیادہ فخر ہے، کیونکہ جب آپ آسمان پر آپ کی ساری فیملی جائے گی تو آج جو کرسچنز، آج جو لوگ امریکہ چلے گئے ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ آپ اس وقت کہہ سکیں گے ہاللیلویا، میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں
मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी सारी फैमिली आसमान पर आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या कोशिश करनी है? आपने ये कोशिश करनी है कि मेरी फैमिली का कोई भी फर्द जो है आसमान पर हमेशा की जिंदगी को पाए बगैर ना रह सके। आपने इस कोशिश में नहीं लगे रहना कि साड़ी फैमिली का सारी अमेरिका चली गई, हुण तो कोई परवाह नहीं, साढ़े को 10 सालों का वीज़ा है, हमारी तो नेशनैलिटी उधर की हो गई है। जो पास्टर साहबान यहाँ से चले गए आज वो बड़े खुश ने, उनका टारगेट जो था, उनका टारगेट अमेरिका था, उन्होंने वो पूरा कर लिया। पता नहीं उनका आसमान पर लोगों को खुद अपनी फैमिली को ले जाने का टारगेट और ईमानदारों को, लोगों को, रूहों को आसमान पर ले जाने का टारगेट कहाँ गया। हालेलुया। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम रूहों को खुदा की तरफ ले जाएंगे। मैंने आपको बताया कि यूहन्ना की अंजील में 13वें बाब से लेकर जब हम 17वें बाब तक पढ़ते हैं तो 12 हवाला जात ऐसे हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं आसमान पर चला जाऊंगा। पहले ही से अपने बच्चों को बता रहे थे। पहला हवाला है, मैं 2-3 हवाले पढ़ूंगा, बाकी जो हैं वो खुद पढ़ें। 3 अबवाब हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, उन हवालों को घर जाकर पढ़ें। और पहला हवाला जो मैं पढ़ूंगा वो यूं है, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 33 आयत। हाय बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। और दूसरा जो इससे पहले एक हवाला है वो यूं है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो ये यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब की पहली आयत है। और जो तीसरा हवाला है वो यूं है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और चौथा जो हवाला है वो यूं है कि अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। ये कितनी फायदेमंद बातें हैं हमारे लिए, कितनी अच्छी बातें हैं। तो ये वो हवाला जात हैं जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे तो उन्हें तसल्ली दे रहे थे, उन्हें दलेरी दे रहे थे ताकि वो घबरा ना जाएं। तो बाकी हवाला जात जो हैं वो 10 या 8 हवाला जात हैं, उनको घर जाकर आहिस्ता आहिस्ता देखें, पढ़ें, ढूंढें, तलाश करें तो आपको वो मिल जाएंगे। अभी मैं आपको वो फ़ायदेमंद बातें जो हैं वो बताऊंगा, वो बयान करूंगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब की दूसरी आयत में यूं कहते हैं कि मैं इसलिए जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूं जाके ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार हो रही है। यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। जैसे कि मैंने अमेरिका जाने वालों का की मिसाल भी आपको दी, आप सब के सब उस जगह पर जाने वाले हैं। एक खादिम बता रहे थे कि ये जो जगह हमारे लिए तैयार हो रही है ये महलों की मानद होगी। अंग्रेज़ जो थे वो जब उनकी हुकूमत थी या अभी भी वो जब अपने मकान बनाते हैं तो मैकडोनल्ड टाइप अपने मकानों को तैयार करते हैं। पीछे तकरीबन 16 या 12 एकड़ में उनका घर होता है और बहुत बड़ा घर, फिर घर के आगे बाग और फिर बाग में
स्विमिंग पूल और फिर इस तरह बहुत से पौधे फूल और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा घर। तो हमें भी कुछ इस तरह के घर जो हैं वो आसमान पर मिलेंगे, तो वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे लिए यीशु जगह तैयार कर रहा है और हमें उस जगह पर जाना है। और दूसरा जो हवाला है वो है यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 3री आयत। लिखा है, फिर आकर हमें अपने साथ ले लें, और क्योंकि खुदा फरमाता है कि जब वो दोबारा आएगा फिर हम उसके साथ दोबारा चले जाएंगे। और फिर खुदा फरमाते हैं कि जहां मैं हूं तुम भी हो। हम अलहदा नहीं होंगे, बल्कि जहां वो खुद होगा वो हमें वहां रखेगा, हमें किसी दूसरी जगह पर नहीं रखेगा कि मैं आपकी ते आप बहुत अच्छी जगह है ते इत्थे रवांगा ते तानू माड़े मोटे मकान ने उत्ते रखांगा। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील और उसके 17 बाब में बाप से दरख्वास्त की थी कि जहां मैं हूं वहां ये भी रहें। इसलिए आसमान पर हम यीशु मसीह के साथ होंगे और हम उसे रूबरू देखेंगे। और फिर तीसरा जो हवाला है, तीसरा जो फायदा है बड़े बड़े काम करने के लिए, क्योंकि यूहन्ना की इंजील 14 बाब 12वीं आयत में लिखा है कि मैं बाप के पास जाता हूं और खुदा फरमाते हैं कि तुम इन कामों से भी बड़े बड़े काम करोगे जो मैं करता हूं। तो यीशु मसीह चला गया है, अब हम बड़े बड़े काम जो खुदावंद ने किए हैं उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और रूह कुद्स हमारे साथ है, इसलिए वो आसमान पर चला गया है ताकि हमें बड़े बड़े काम करने के लिए और रूह कुद्स दे, ताकि खुदा का रूह हमें काम करे और हम अजीब और बड़े बड़े काम करें। चौथा जो फायदा है और वो यूं है, यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब की 28 आयत, मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे साथ तुम्हारे पास फिर आता हूं। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरी सूरत में हमारे साथ रहने के लिए, रूह कुद्स की सूरत में हमारे साथ रहने के लिए फिर से आता है, फिर से रहता है, फिर से वो आता है। क्योंकि जब हम मत्ती रसूल की अंजील के आखिरी बाब का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो वो आसमान पर तो चला गया है, लेकिन वो दूसरी सूरत में हर रोज़ हमारे साथ है। और सबसे ज़रूरी बात जो आज का हवाला है वो यूँ है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार जो है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह आसमान पर इसलिए गए कि जाकर रूह कुद्स को भेजें, क्योंकि बाप की तरफ से बाप के साथ ये वादा भी था। इसलिए यीशु मसीह जाएगा और जाकर उसको हमारे लिए भेज देगा। जैसे कि ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्स शागिर्दों पर नाजिल हुआ और वो रूह कुद्स से भर गए और उन्होंने अजीब काम किए, अजीब कामों को देखा और उन्होंने मौजज़ात किए और आग के शोलों की सी जुबानें उनमें से हर एक पर आकर ठहरी और अजीब काम हुए। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम रूह से भरते हैं, जब हम पाक रूह से भर जाते हैं तो हमारी जिंदगी भी अजीब बन जाती है। रूह कुद्स हमारी जिंदगियों में आकर हमें अजीब बना देता है। फिर हम यीशु की कमी फील नहीं करते, क्योंकि रूह कुद्स हमारे अंदर आकर अपनी कुव्वत को, अपनी कुदरत को भर देता है और हम अजीब हो जाते हैं। और रूह कुद्स हमें
इसलिए दिया जाता है कि हम उसे रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और जब वो कुव्वत हम में आती है तो इब्लीस को शिकस्त होती है। इसलिए यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए तो शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के मौऊद का इंतजार करो। और उनको इसलिए रूह कुद्स देने का वादा किया ताकि वो रूह कुद्स की मदद से खिदमत करें, वो रूह कुद्स के बगैर खिदमत ना करें। ऐसा ना हो कि वो इब्लीस से शिकस्त खा जाएं। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे लिए रूह कुद्स का होना, हमें रूह कुद्स का पाना बहुत ज़रूरी है। अगले संडे को और रूह ईद पेंतिकोस्त है और यहाँ पर रूह कुद्स का सेशन भी होगा। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि तैयारी करके आएँ। जिस तरह से रसूलों ने 10 दिन जो है वो तैयारी की, वो दुआ में ठहरे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा तसलसल के साथ उन्होंने दुआएं की जब तक कि पाखरू ना आ गया। इन दिनों मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी दुआ में रहिए जब तक उस दिन तक हम सेशन ना कर लें। ज़बरदस्त सेशन होगा, आप भी तैयारी करके आएँ, हम भी तैयारी करके आएंगे और कोशिश करें कि खुदा से उसका रूह मांगें और रूह के लिए प्यासे हों, और रूह के लिए आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। जब आपके अंदर रूह के लिए भूख और प्यास होगी तो आपको खुदा का पाक रूह ज़रूर छुएगा और आप रूह कुद्स से भर जाएंगे। और आखिरी और जो छठा पॉइंट है वो है यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील के 17वें बाब की 13वीं आयत में फरमाते हैं, ताकि मेरी खुशी इन्हें पूरी पूरी हासिल हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु की खुशी हमें पूरी पूरी मिले, आधी खुशी नहीं, थोड़ी सी खुशी नहीं, बल्कि हमें पूरी पूरी उसकी खुशी हासिल हो। और वो इस खुशी को दिलाने, हमें मामूर करने, हमारे गम को लेने के लिए, हमें भरने के लिए, रूह कुद्स का तजुर्बा देने के लिए वो आसमान पर चले गए ताकि ईमानदार खुशी से भर जाएं। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह खुद भी फरमाते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम उदास तो होगे, तुम परेशान तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी में बदल जाएगा। हम खुशी से भर जाते हैं जब रूह कुद्स हमारे अंदर आता है, जब रूह में हम दुआ करते हैं, जब मौजज़ात होते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब खुदा की कुदरत हमारे अंदर काम करती है तो हम खुशी से भर जाते हैं। और यही खुशी, बल्कि इससे बढ़कर खुशी जो ज़मीन पर भी यीशु ने हमें दी और आसमान पर भी हमें मिलेगी, और हमारी खुशी का कभी एंड नहीं होगा। और इसीलिए यीशु मसीह आसमान पर चले गए और ये सारी बरक़ात हमारे लिए वो लेकर बाप के पास गए। बाप से वो सारी ये बरक़ात हमारे लिए लेकर वो भेजेंगे और वो आज हमें बरक़ात मिल रही हैं। इसलिए हमें खुश होना है, हमें परेशान नहीं होना, हमें खुदा के नाम को जलाल देना है। बस हमने अपने आप को रूह कुद्स के लिए खाली करना है और हमने खुदा के नाम को जलाल देते रहना है। अंजील की खुशखबरी और मुनादी हमने करनी है, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।